السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں کلاس کا سبق نمبر 8 دوسرا موسم کشمیری لال کا لکھا ہوا ہے۔ اس سبق کا گرامر آپ لوگوں کے سامنے آج پیش کیا جائے گا۔ تو 3 رومر یہاں پر دیے گئے ہیں۔ یہ کیجئے کے اندر سمجھنا، اظہار خیال کرنا۔ رومن نمبر 2 اظہار مافی الضمیر، تخلیقی صلاحیت کا اظہار، اور تیسرا رومن ہے زبان شناسی۔ تو ہم آپ کے سامنے گرامر کے تعلق سے رومن نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چونکہ رومن نمبر 1 قریب سبق اور پیراگراف پڑھنے سے اس کے بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو وہاں پر مل جائیں گے، اور تخلیقی صلاحیت کے اندر، اظہار مافی الضمیر کے اندر آپ کو چونکہ خود کو اپنے جوابات دینے ہوتے ہیں، تو کچھ جوابات آپ کو یہاں سے مل جائیں گے، کچھ آپ کو اپنے عقل سے ہی اس کے جوابات آپ دے سکتے ہیں۔ تو زبان شناسی جو ہے اس کے تعلق سے ہم آج آپ کے سامنے بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے پہلا کام ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ لفظیات یہ لفظ کی جمع ہے، لفظ واحد ہے، اس کی جمع لفظیات ہے۔ الف پہلا کام، ذیل میں دیے گئے الفاظ کی جوڑیوں کو استعمال کرتے ہوئے جملے لکھیے۔ یہاں پر الفاظ کون کون سے ہیں میں پڑھ رہا ہوں۔ زندگی، خزاں، یتیم، ترس، آواز، تلخی، لگن، محنت، عجیب، محفوظ۔ یہاں پر 5 الفاظ دیے گئے ہیں۔ ان 5 الفاظ کے سامنے پھر 5 الفاظ دیے گئے ہیں، تو ان سے آپ لوگوں کو کیا کرنے ہیں؟ جملے بنانے ہیں۔ تو جملہ نمبر 1، زندگی گزارنے کے لیے محنت شرط ہے۔ جملہ نمبر 2، یتیم ماں کے ممتا کے لیے ترس جاتے ہیں۔ یتیم ماں کی ممتا کے لیے ترس جاتے ہیں۔ جملہ نمبر 3، غصے کی آواز میں اکثر تلخی ہوتی ہے۔ غصے کی آواز میں اکثر تلخی ہوتی ہے۔ جملہ نمبر 4، لگن اور محنت سے کام کرنا انسان کے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ جملہ نمبر 5، باغ میں کافی دنوں بعد عجیب خزاں آئی ہے۔ تو 5 جملے آپ کے سامنے بنا کر پیش کیے گئے ہیں۔ کام نمبر 2 ہے بے سیکشن کے اندر حسب ذیل جملوں میں کشیدہ الفاظ کے معانی لکھیے۔ کشیدہ، کشیدن یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ خط کشیدہ، خط کے معنی ہوتے ہیں لائن، لکیر۔ تو جن لفظوں کے نیچے لکیر دی گئی ہے ان کے معنی یہاں پر آپ کو لکھنے ہیں۔ تو دیکھیے پہلا جملہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنے سے انہیں صدمہ پہنچتا ہے۔ جملہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنے سے انہیں صدمہ پہنچتا ہے۔ یہاں پر انڈرلائن کیا گیا ہے، خط کشید کیا گیا ہے لفظ، وہ ہے صدمہ۔ صدمہ کے معنی کیا؟ صدمہ کے معنی ہوتے ہیں دکھ۔ صدمہ کے معنی ہوتے ہیں دکھ، تکلیف۔ جملہ نمبر 2 ہے دوا کے استعمال سے مرض میں بتدریج افاقہ ہوتا ہے۔ جملہ نمبر 2 کیا ہے؟ دوا کے استعمال سے مرض میں بتدریج افاقہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بتدریج افاقہ، تو اس کو انڈرلائن کیا گیا ہے۔ تو اس کے معنی ہیں دھیرے دھیرے اچھا ہونا، رفتہ رفتہ ٹھیک ہو جانا۔ تو بتدریج افاقہ کے معنی ہوتے ہیں۔ جملہ نمبر 3، بارش کا ریلا تمام بستی کو بہا لے گیا۔ بارش کا ریلا تمام بستی کو بہا لے گیا۔ تو ریلا کے معنی کیا؟ ریلا کے معنی ہوتے ہیں بہاؤ۔ پانی جو زور سے آتا ہے اس کو بہاؤ کہتے ہیں۔
जुमला नंबर 4, बद कलामी से रिश्तों में तलखियां पैदा होती हैं। यहां पर तलखियों को इन्होंने, तलखियां इस लफ्ज को इन्होंने अंडरलाइन किया है। तल्ख के माने होते हैं कड़वाहट, तलखियां के माने होते हैं कड़वाहट। तो बद कलामी से रिश्तों में तलखियां पैदा होती हैं। काम उसके बाद का हमको दिया गया है, सबक में इस्तेमाल हुए अंग्रेजी अल्फाज की फहरिस्त तैयार कीजिए और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अंग्रेजी अल्फाज, चूंकि ये एक्टिविटी हमारे लिए बहुत आसान है और करना मुश्किल भी नहीं है, चूंकि आमतौर से अंग्रेजी ज़बान का इस ज़माने में ज़्यादा बोलबाला है, तो हम समझते हैं अंग्रेजी अल्फाज हमारे उर्दू ज़बान में किस तरीके से रच बस गए हैं, तो हम आसानी से उनको उर्दू से बाहर निकाल सकते हैं। बल्कि यूँ कहा जाए, हर ज़बान के ऊपर अब अंग्रेजी ज़बान का रंग गालिब आते जा रहा है। तो ऐसे ही उर्दू ज़बान भी जो है अंग्रेजी ज़बान के जद में आ रही है। तो चूंकि कश्मीरी लाल साहब हमारे इस ज़माने के मुसन्निफ होने के नाते से इन्होंने अपने अफसाने के अंदर खालिस उर्दू अल्फाज के साथ अंग्रेजी अल्फाज का भी सहारा लिया है। तो देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बस, वाटर, कार, रोड, फैन, लाइट, ये वो अल्फाज हैं जो हमारी ज़बान पर आम जद हैं। हमको अंदाज़ा भी नहीं है, ख्याल भी नहीं है कि भाई ये अंग्रेज़ी ज़बान के अल्फाज हैं, मगर उर्दू में ऐसे आकर के बैठ गए हैं कि हमको ख्याल ही नहीं आता कि ये उर्दू है या अरबी है या अंग्रेज़ी है। बहरहाल हमारे सबक के अंदर अंग्रेज़ी अल्फाज कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर ओल्ड एज होम है, ये अंग्रेज़ी लफ्ज़ है। गेट है, ये भी अंग्रेजी लफ्ज है। जॉब है, ये भी अंग्रेजी लफ्ज है। टीवी है, ये भी अंग्रेजी लफ्ज है। स्क्रीन है, ये भी अंग्रेजी लफ्ज है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे अंग्रेजी अल्फाज इस सबक के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, जो यहां पर जमा करने के लिए मुसन्निफ ने हमको काम दिया है। तो और भी बहुत सारे अल्फाज आप ढूंढ करके इसके अंदर से निकालें और उनके जो है अल्फाज बनाएं, जुमले बनाएं। अल्फाज से, इन अल्फाज से आप जुमले बनाएं। अब हम चलते हैं ग्रामर में, कवाइद में। कायदा ये वाहिद है, इसकी जमा आती है कवाइद। तकरार लफ्जी, तकरार लफ्जी, इस कायदे को इससे पहले आप लोगों ने 7th क्लास के अंदर एक लेसन आया था, चचा छक्कन का ऐनक। तो उस सबक के अंदर इस ग्रामर को बताया गया था। अब यहां पर इसको दोबारा दोहराया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। तकरार, तकरार के माने से ही पूरा ग्रामर का मसला हल हो जाता है। इस्म बा मुसम्मा है तकरार। तकरार के माने होते हैं एक चीज को बार बार लाना, रिपीट करना, बार बार। देखिए अभी जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं उसी के अंदर एक लफ्ज आ रहा है बार बार। चलते चलते, खाते खाते, सोते सोते। तो ये उर्दू जबान के अंदर भी ऐसा है कि बात में ताकीद पैदा करने के लिए, बात में माने को और ज्यादा तकवीयत पहुंचाने के लिए अल्फाज की रिपीट की जाती है। जैसे मैं ये कहूं मैं चलते आया, तो इतना ज्यादा माने में बात में ताकत नहीं दिखती। मैं ये कहूं मैं चलते 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 आया, तो अब जो है मेरे चलने के अंदर मेरी मेहनत का पता चल रहा है कि मैं कितना चल के आया। अब देखिए आमतौर से हम कहते भी हैं मैं खाते खाते थक गया, मैं खाते थक गया, तो इसमें इतना माना नहीं आता ताकीदी माना। तो ताकीदी माना किसके अंदर आ रहा है? जैसे जैसे अल्फाज बढ़ते जाएंगे ऐसे ही ताकीद भी बढ़ती जाएगी, उस माने के अंदर जो है मुअय्यद होता जाएगा। तो कहते हैं कि मैं चलते चलते थक गया, यानी मैंने बहुत ज्यादा चला। तो ऐसे ही जो है शादा पढ़ते सो गई। अब मैं कहूं कि शादा पढ़ते पढ़ते सो गई, यानी उसके पढ़ने का जमाना बहुत लंबा था, बहुत ज्यादा उन्होंने पढ़ा, इतना पढ़ा कि उनको नींद आने तक उन्होंने पढ़ लिया। तो ये है। तो तकरारे लफ्जी क्यों लाया जाता है उसका फायदा मैंने आपको बताया, और तकरारे लफ्जी किसको कहते हैं उस चीज को मैंने आपको बताया। तकरारे लफ्जी,
लफ्ज को बार बार लाना। इसका फायदा क्या है? बात में ताकीद पैदा करना। ये दो चीजें हैं। अब हम देखते हैं इन्होंने काम क्या दिया है। अल्फाज, इन जुमलों पर गौर कीजिए। क्या है? अहमद खुशी खुशी चला गया। पहली मिसाल इन्होंने क्या दी? अहमद खुशी खुशी चला गया। तो खुशी खुशी को कितने बार इन्होंने लाया है? 2 बार। तो ये भी कह सकते थे अहमद खुश होकर चला गया, लेकिन बात में इतना मजा नहीं है जिसके अंदर खुशी खुशी के अंदर मजा आ रहा है। घर घर दीप जले हैं, तो इसको आप दूसरे अंदर नहीं में कहते कि हर घर दीप जला है। हर घर दीप जला है ये भी एक ही मतलब है, और घर घर दीप जले हैं ये भी एक ही मतलब है, मगर दोनों के अंदर माने के एतबार से, ताकीद के एतबार से, मजा के एतबार से, नजाकत के एतबार से बारीक फर्क है। क्या फर्क है? घर घर दीप जले हैं, ये जुमला ज्यादा मजेदार है। देखिए इन दोनों जुमलों में खुशी और घर का लफ्ज 2 बार इस्तेमाल हुआ है। तो फायदा बता रहे हैं तकरार लफ्जी का, किसी बात पर जोर देना हो, अल्फाज की तकरार की जाती है, ऐसी तरकीब को तकरार लफ्जी कहते हैं। ऐसे तरकीब को तकरार लफ्जी कहते हैं। बे सेक्शन के अंदर इन्होंने क्या काम दिया है, अब देखते हैं। इन दोनों जुमलों पर गौर कीजिए। इन्होंने 2 मिसालें दी हैं, उन दोनों मिसालों पर हमको गौर करना है। क्या गौर करना है? जुमला क्या है? आज इंसान को हर कदम पर मुश्किलात का सामना है। आज इंसान को हर कदम पर मुश्किलात का सामना है। इस जुमले को तकरारे लफ्जी में हम तब्दील करते हैं तो वो कैसे बनेगा? आज इंसान को कदम कदम पर मुश्किलात का सामना है। हर कदम को इन्होंने तकरारे लफ्जी में क्या कर दिया? हर को हटा दिया, एक लफ्ज बढ़ा दिया कदम। तो कदम कदम पर मुश्किलात का सामना है। तो दूसरा जुमला जो है यह तकरारे लफ्जी कहलाता है। दोनों जुमलों पर गौर करेंगे तो यकीनन दूसरा जुमला मानी और मफहूम के एतबार से माना खेज है। मश्क, दिए गए तकरारे लफ्जी से 2 जुमले लिखिए। यहां पर इन्होंने 11 अल्फाज दिए हैं। 11 अल्फाज तकरारे लफ्जी के दिए हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूं एक मर्तबा। अपना अपना, बड़ी बड़ी, चलते चलते, साथ साथ, अलग अलग, किस्म किस्म, कौन कौन, कभी कभी, अश अश, बात बात, बार बार। ये 11 अल्फाज इन्होंने यहां पर तकरारे लफ्जी के दिए हैं। इन 11 अल्फाज से हमको 11 और 11 जुमले बनाने हैं। देखिए एक जुमला मैं आपके सामने मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूं। अपना अपना, इस तकरारे लफ्जी से हमको बनाना है जुमला कि तकरारे लफ्जी से जुमला कैसे बनेगा? जमाअत में यानी क्लास में हर बच्चा अपना अपना काम कर रहा है। यह जुमला आपका बेहतरीन बन गया आपके क्लास के हिसाब से। बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी से जुमला बन रहा है। छोटी जबान से बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। चलते चलते, जुमला नंबर 3, चलते चलते, मैं चलते चलते घर पहुंच गया। मैं चलते चलते थक गया। जुमला नंबर 4, साथ साथ, अपने दोस्त को मैं बाजार साथ साथ ले चला। जुमला नंबर 5, अलग अलग, चमन में अलग अलग फूल पाए जाते हैं। यह जुमला बनेगा दुनिया में अलग अलग सोच के लोग मौजूद हैं। जुमला नंबर 6, किस्म किस्म, किस्म किस्म, अलग अलग से ही किस्म किस्म का जुमला भी आपको बन जाएगा कि हर इंसान की सोच
अलग अलग होती है। दुनिया में किस्म किस्म के लोग पाए जाते हैं। कौन कौन, कौन कौन से आपको जुमला बनाना है। तो कौन कौन, तो क्लास में कौन कौन बैठकर पढ़ रहे हैं। क्लास में कौन कौन बैठकर पढ़ रहे हैं, यह जुमला आपका बेहतरीन बन गया। कभी कभी, कभी कभी से जुमला बनाना है। हामिद कभी कभी क्लास से गैर हाजिर हो जाते हैं। हामिद कभी कभी क्लास से गैर हाजिर हो जाते हैं। अश अश, हामिद की कामयाबी पर हम सब क्लास फेलू, क्लास फेलू कहते हैं क्लासमेट को उर्दू जबान में, तो क्लास फेलू अश अश कर रहे हैं। अश अश के माने होते हैं फख्र करना, किसी की खुशी पर अपनी खुशी का इजहार करना। तो हामिद की कामयाबी पर हम सब क्लास फेलू अश अश कर रहे हैं। बात बात, जुमला नंबर 10, बात बात पर नाराज हो जाना ये नापसंदीदा हरकत है। बात बात पर नाराज हो जाना ये नापसंदीदा हरकत है। बार बार, बार बार का लफ्ज है। कोई फोन ना उठाए तो बार बार फोन नहीं करना चाहिए। एक बात बार बार पूछकर आदमी को बेजार नहीं करना चाहिए। ये मैंने तमाम के तमाम 11 जुमले आपके सामने पेश कर दिए हैं। इससे और भी आप अपनी तरफ से बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। खैर, मश्क नंबर 2 यहां पर इन्होंने दिए हैं। इन जुमलों को मिसाल के मुताबिक तकरारे लफ्जी में तब्दील कीजिए। क्या काम है? इन जुमलों को मिसाल के मुताबिक तकरारे लफ्जी में तब्दील कीजिए। मिसाल, शादा पढ़ रही थी अब सो गई, ये एक जुमला है। इस जुमले को तकरारे लफ्जी में हमको ले जाकर चेंज करना है। देखिए जुमला, शादा पढ़ते पढ़ते सो गई। शादा पढ़ रही थी अब सो गई, तकरारे लफ्जी। शादा पढ़ते पढ़ते सो गई, ये एक मिसाल इन्होंने दी है। अब 3 मिसालें यहां पर हमारे लिए दी जा रही हैं, हमको वो काम करके बताना है। क्या जुमला है? तय्यबा स्कूल की घंटी की आवाज सुनकर जल्दी भाग कर स्कूल पहुंची। जुमला क्या है? तय्यबा स्कूल की घंटी की आवाज सुनकर जल्दी भागकर स्कूल पहुंची। तकरारे लफ्जी में मैं इस जुमले को बना रहा हूं। तय्यबा स्कूल की घंटी की आवाज सुनकर जल्दी जल्दी, क्या है? जल्दी जल्दी भागकर स्कूल पहुंची। यहां पर एक लफ्ज बढ़ा दिया जाएगा, जल्दी जल्दी। जुमला नंबर 2, राशिद जा रहा था रुक गया। राशिद जा रहा था रुक गया, तो जुमला क्या बनेगा तकरारे लफ्जी में? राशिद जाते जाते रुक गया। जाते जाते रुक गया। जुमला नंबर 3, सहरा में लोग पानी की बूंद के लिए तरसते हैं। जुमला नंबर 3 क्या है? सहरा में लोग पानी की बूंद के लिए तरसते हैं। तो जुमला तकरारे लफ्जी में यूं बनेगा, सहरा में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। तो एक लफ्ज क्या बढ़ेगा इसके अंदर? बूंद बूंद या फिर पानी। चलिए जुमला नंबर 5 है, जुमला नंबर 4 है, जब भी चांद निकला तब आपकी याद आई। जब भी चांद निकला तब आपकी याद आई। तकरारे लफ्जी में जुमला बनेगा, जब जब भी चांद निकला। जब जब भी चांद निकला तब तब आपकी याद आई। जब जब तब तब। जुमला नंबर 5 है, तुम भी हमारे साथ चलो। तकरारे लफ्जी में जुमला बनेगा, तुम भी हमारे साथ साथ चलो। साथ साथ। जुमला नंबर 6,
اکبر کی باتیں سن کر میرے کان پک گئے. تکرار لفظی میں جملہ بنے گا اکبر کی باتیں سن سن کر. اکبر کی باتیں سن سن کر، یہ سن سن کر تکرار لفظی ہے. تو اکبر کی باتیں سن سن کر میرے کان پک گئے. تو اب یہاں پر انہوں نے جملوں کے اندر مثال دی ہے. تو کیا تکرار لفظی صرف ہمارے عام بول چال اور باتوں میں ہی ہوتی ہے؟ نہیں، یہ چیز زبان سے تعلق رکھتی ہے. تو جیسے نثر میں یہ چیز ہوتی ہے ایسے ہی نظم میں بھی ہوتی ہے. تو یہاں پر دو اشعار انہوں نے مثال کے طور پر پیش کیے ہیں کہ اس کے اندر ہم تلاش کرتے ہیں تکرار لفظی کیا ہے. پہلا شعر ہے آتے آتے آئے گا ان کو خیال. آتے آتے آئے گا ان کو خیال، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی. تو اس شعر کے اندر پہلے مصرے میں آتے آتے یہ تکرار لفظی ہے اور دوسرے مصرے میں جاتے جاتے یہ تکرار لفظی ہے. شعر نمبر 2 ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. بڑا پیارا شعر ہے معنی کے اعتبار سے بھی اور مثال کے اعتبار سے بھی. اس کا مطلب بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا بھی. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. کیا ہے یہاں پر تکرار لفظی؟ پتا پتا بوٹا بوٹا یہ تکرار لفظی ہے. تو شاعر نے یہاں پر تکرار لفظی کے طور پر پتا پتا بوٹا بوٹا استعمال کیا ہے. معنی مطلب کیا ہے اس شعر کا؟ شاعر اپنے محبوبہ کی غفلت کو اس میں بیان کر رہا ہے کہ بھائی ہم جس سے محبت کر رہے ہیں، یہ دل ہم نے جس کو دے دیا، جس پر قربان کر دیا، جس کے لیے ہم جینے مرنے کے وعدے بھرے ہیں، ہماری محبت پوری دنیا کو معلوم ہے، مگر ہم جس کے لیے مر رہے ہیں ان کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ہماری خبر نہیں ہے. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے. یہاں پر گل سے مراد جو ہے یہ محبوبہ مراد ہے یہاں پر. تو گل یعنی پھول کو کہتے ہیں. پورے باغ کے اندر چھوٹے چھوٹے جھاڑ پودے پتے ڈالیاں سب ہم کو پہچانتے ہیں، مگر کون نہیں پہچانتا ہے؟ ایک گلاب کا پھول ہم کو نہیں پہچانتا ہے جس کو ہم پہچانتے ہیں. یہاں پر انہوں نے دو اشعار یہاں پر پیش کیے ہیں. ایک مثال میں اپنی طرف سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پل پل انتظار کیا اس پل کے لیے، پل پل انتظار کیا اس پل کے لیے، وہ پل بھی آیا تو ایک پل کے لیے، اب ہر پل دعا ہے اس پل کے لیے، کاش پھر آ جائے وہ پل ایک پل کے لیے. تو یہ پل پل کا لفظ یہاں پر جو استعمال ہوا ہے یہ پہلے مصرے کے اندر پل پل انتظار کیا اس پل کے لیے. تو یہ جو پل پل لفظ آیا ہے یہ تکرار لفظی ہے. تو اس طریقے سے تکرار لفظی یہ کوئی مشکل گرامر نہیں ہے، مشکل قاعدہ نہیں ہے، بہت آسان ہے. ہم اپنے عام بول چال کی زبان میں اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو سمجھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے اور اردو زبان کو پوری دنیا کے اندر عام فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمارا رشتہ مضبوط فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.